are going to learn about the classical theories of international trade. In this chapter, we will learn about the two major theory of international trade that is given by classical economist. One is the absolute theory and second one is the comparative advantage theory given by David Ricardo. So today we will discuss about the classical theories of international trade. So if we talk about the international trade, so in this chapter or in these theories, we will learn that how much international trade is contributing to the world. So these two theories will answer some of these questions, that why do countries trade with other country, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड क्यों करती है, इस थ्योरी से ये पता लगेगा. What are the gains obtained from trade? This theory also gives the answer that when the countries is doing trade, then what they will gain from the trade, and what goods and services are to be traded, कि कौन से goods and services trade किए जाएंगे, which goods are imported and exported by each country, कि कौन सी टाइप की goods जो है कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए और कौन सी टाइप की goods जो है वो इम्पोर्ट करना चाहिए. तो ये दो थ्योरीज जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, दिस थ्योरी गिव्स द मेजर answer to these four questions. Why do countries trade with each other? What are the gains obtained from trade, and what goods and services are to be traded, and which goods to be imported and which goods to be exported by the countries. So these four questions will be answered by these two theories, that is absolute advantage theory given by Adam Smith and the comparative advantage theory that is given by the David Ricardo. Both of these are the classical economists. That's why it is called the classical theory of international trade. So first we are going to discuss about the absolute advantage theory, then we will learn about the comparative advantage theory, because comparative advantage theory is an improvement of absolute advantage theory. So absolute advantage theory was given by the father of modern economics, that is Adam Smith, in his famous book The Wealth of Nation, and Wealth of Nation was published in 1776. So the theory of Adam Smith was based on two major thing, that is first is the specialization in production and second is the division of labor. So absolute advantage theory is based on two things, specialization and division of labor. The specialization is the result of division of labor. Division of labor is the work should be divided among the member according to their capability, and when they do the same thing for continuous period of time, they will specialize in their field. That's why division of labor is important part of this theory, and specialization is the result of that division of labor. So division of labor and specialization was given by this two concept was given by and more emphasized by the Adam Smith, because these two thing plays an important role in every economy, division of labor and specialization, because production or any productive activities can be changed by division of labor and specialization. So the absolute advantage theory based on these two concepts, specialization of production in production and division of labor. According to Smith, the trade between two nations is based on the absolute advantage. There is difference in, जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज जो है, इन दोनों में कंपैरेटिव, ये दो चीज़ें हैं डिफरेंट होती है. एब्सोल्यूट जो अमाउंट के टर्म में हम विद इन नेशन, जब हम दो कंट्रीज़ के बीच में
ये देखते हैं कि हमारी कंट्री कौन सी गुड्स को सस्ता प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कंट्री कौन सी गुड्स को कर रही है। कंपैरेटिव मीन्स रिलेटिव टर्म, कि जब हम अपनी कंट्री में रिलेशन देख रहे हैं कि दो गुड्स का, कि कौन सी ज़्यादा सस्ती प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी एक्सपेंसिव प्रोड्यूस हो रही है, तो एब्सोल्यूट जो एडम स्मिथ की जो थ्योरी है दैट इज़ based on the absolute advantage, not on the comparative advantage. So he showed how all countries would gain from international trade through international division of labor. कि इसने ये शो करने की कोशिश की है कि इंटरनेशनल ट्रेड जब इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू जब होता है तो उससे कंट्री कैसे गेन करती है। जब स्पेशलाइज्ड होती है कंट्री प्रोडक्शन में किसी एक गुड्स को बनाने में, तो उससे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट कंट्रीज़ को जो ट्रेड कर रही है उनको कैसे गेन होता है। सो एडम स्मिथ emphasized on the division of labor and specialization, and he says the international trade is possible when there is absolute difference in cost, कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, there is absolute difference in the production cost of various countries, then international trade will be possible. So every nation, Adam Smith says, every nation should specialized in the production of that goods which it can produce more cheaply than the others. Suppose we are taking two countries, India and Nepal. So India should specialized in that goods in which it produce more cheaply than the Nepal, and Nepal should specialized in that production of that commodity in which its cost is less than India, कि उस गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें उसमें स्पेशलाइज्ड हो कंट्री जो वो दूसरी कंट्री से ज़्यादा चीपली प्रोड्यूस कर सकती है, और उसी को वो स्पेशलाइज्ड करे प्रोडक्शन में और उसी को आगे वो एक्सपोर्ट करे। जो गुड्स दूसरे कंट्री के कंपैरेटिवली हम महंगा प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंट्री महंगा प्रोड्यूस एक्सपेंसिव प्रोड्यूस करती है, उसे इंपोर्ट कर सकती है दूसरी कंट्री से। सो एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स विच इट कैन प्रोड्यूस more cheaply than the other country, and also export that goods only and import that goods which it can produce expensive than the others. So this is the absolute advantage theory, and its major focus on the specialization part, specialization in production and division of labor. So this theory is based on some of the assumption. First assumption, this theory also says the labor theory of value, because Adam Smith assumes that labor is the only factor of production. There is no other factor than labor in production, कि production जो है सिर्फ labor से ही हो रही है, कोई और factor नहीं है. This theory also called 2x2 model. 2x2 model means two country, two commodities, and only one factor of production. That's why it is called 2x2 model. There are two country and two commodity. He stated that trade would be beneficial for both the countries if country A exports the goods which it can produce with lower cost than other country. Suppose there are two country A and B, then A should specialized in the production of that goods which it can produce at lower cost than country B, and it should export that commodity only. Next assumption is all the units of labor are homogeneous. That means all the labor are equal. It has a equal skill, equal efficiency. Constant return to scale applies. Free from the government interference, and that means there is free trade. There is no export or import duty, no tariff is there in the international trade. Adam Smith advocated the free trade concept. Perfect competition is in the market, and there is balanced trade. That means countries' export is always equal to countries'
import. There is no surplus, neither deficit. So this theory is based on these assumptions, absolute advantage theory. So now we are coming to the explanation part. Adam Smith says the main base of international trade is the difference in absolute cost. कि जो मेन बेस होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट कॉस्ट इन द कंट्रीज. कि दो कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल हो सकता है, उसका बेस जो होता है कि दो कंट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिफर आ रही है. डिफरेंस इन एब्सोल्यूट cost arise when one country produce a commodity at very lower cost than other country. कि suppose country A is producing a commodity which is at much lower cost than country B, then it can trade with country B in that commodity. According to him, the Adam Smith says country should specialize in producing that commodity which it can produce more cheaply than the other country. And it should export that commodity only which it produce at lower cost than other country, and should import that commodity which is expensive in his country, in her country. So export should be in that commodity which is cheaper in cost, and import in that commodity which is expensive in its country. So this is the explanation of Adam Smith theory. Now we are going to look this theory with the help of an example. अब हमने यहाँ पे दो कंट्री लिया है. इट इज़ अ 2x2 मॉडल, दैट मीन्स 2 country and 2 goods. सो ओनली 2 country and 2 goods. एंड प्रोडक्शन कौन से फैक्टर से हो रही है? लेबर से. 2 country लिया है हमने, ईरान एंड इंडिया. 2 कमोडिटी लिया है, राइस और टी. 2 गुड्स हैं हमारे, राइस और टी. दिस टेबल shows the absolute difference in cost और प्रोडक्शन बिफोर द इंटरनेशनल ट्रेड. कि इंटरनेशनल ट्रेड से पहले जो प्रोडक्शन हो रही है वो शो कर रहा है. सपोज by using 1 unit of labor, Iran is producing 20 unit of rice and 10 unit of tea. 1 यूनिट लेबर को यूज़ करके ईरान राइस 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है और 10 यूनिट टी प्रोड्यूस कर पा रहा है. सिमिलरली इंडिया 1 यूनिट लेबर यूज़ करके राइस कितना प्रोडक्शन कर रही है? 10, और टी कितना कर रही है? 20. तो टोटल जो ट्रेड प्रोडक्शन है दैट इज 30 यूनिट इन ईरान एंड 30 यूनिट इन इंडिया. राइस का 30 यूनिट और टी का भी 30 यूनिट है. तो अब यहाँ पे क्वांटिटी देख के पता लग रहा है कॉस्ट में डिफरेंस की. एक लेबर 20 यूनिट राइस प्रोड्यूस कर सकता है ईरान में और 10 यूनिट टी प्रोड्यूस कर सकता है. तो एफिशिएंसी किस में है इसकी? राइस में, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है. सिमिलरली इंडिया में जो लेबर है वो कौन से गुड्स की ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है? 20 टी की और 10 राइस की. दैट मीन्स टी की प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर रहा है. तो यहाँ पे इस टेबल से हमें क्या पता लगता है कि राइस की जो प्रोडक्शन है ईरान ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर सकता है और इंडिया जो है वो टी की प्रोडक्शन कर सकता है. ईरान राइस और इंडिया टी की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से और कम कॉस्ट पे कर रहा है, क्योंकि एक लेबर 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है टी इंडिया में, और ईरान में एक लेबर 20 यूनिट राइस प्रोड्यूस कर रही है एज़ कम्पेयर टू टी 10 यूनिट ज़्यादा है. तो कॉस्ट किसकी कम है? ईरान में राइस की और इंडिया में टी की. सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अब कॉस्ट जो है वो किस पे है? कॉस्ट राइस में ईरान और इंडिया में टी की. तो एडम स्मिथ ने फुल्ली स्पेशलाइजेशन की बात की है. फुल स्पेशलाइजेशन मीन्स इफ द कॉस्ट ऑफ राइस इन ईरान इज लेस देन टी, देन सारा का सारा, अब 2 यूनिट यहाँ पे लेबर है तो 2 के 2 यूनिट ईरान जो है राइस यहाँ से हटा के, टी से हटा के राइस को प्रोड्यूस करना चाहिए. और इंडिया क्या करेगा? राइस से हटा के
टी के प्रोडक्शन में लगा देगा दूसरा लेबर. So Iran has absolute advantage in production of rice and India has absolute advantage in production of tea. It means the trade between India and Iran will benefit both if Iran specializes in the production of rice और India is in production of tea. तो अब क्या करेगा, 2 लेबर यूज हो रहे थे यहाँ पे, तो ईरान में राइस सस्ती है तो दोनों लेबर अब कहाँ जाएंगे, राइस में. तो 1 यूनिट, जब ईरान 1 यूनिट लेबर से 20 यूनिट राइस प्रोड्यूस कर रहा था, तो अब टी से हटा दिया उसने 1 यूनिट लेबर और राइस में लगा दिया, तो एक लेबर 20 यूनिट प्रोड्यूस करता था, अब कितना कर रहा है, 40. इंडिया में सिमिलरली राइस से लेबर को विदड्रॉ करके टी में लगा दिया, तो ये कितना करेगा अब, 40 प्रोडक्शन. तो बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 30. आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड जब स्पेशलाइज्ड हुई कंट्री तो प्रोडक्शन 40 हो गया, मतलब 10 यूनिट जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है. तो ईरान जो है वो जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन वो हमारा 40 यूनिट एंड 40 यूनिट, दैट मीन्स पहले 30 हो रहा था बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड के बाद कितना हो रहा है, 40 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स, तो 10 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ गया है. तो अब ईरान किस में स्पेशलाइज्ड होगा, राइस में, और इंडिया टी में. सो ईरान विल एक्सपोर्ट राइस एंड इम्पोर्ट टी फ्रॉम इंडिया. सिमिलरली इंडिया विल एक्सपोर्ट टी एंड इम्पोर्ट द राइस फ्रॉम ईरान. तो फुली स्पेशलाइज्ड हो गई, दूसरी कमोडिटी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो जो एडम स्मिथ की थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन द फुल स्पेशलाइजेशन. सो अब हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा है. लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड 40 इंक्रीज हो गया, टोटल आउटपुट 10 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है. ईरान एंड इंडिया का जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज ईरान in production of rice and India in the production of tea. बट दोनों को बेनिफिट गेन कब होगा, कि कितना यूनिट वो अपना प्रोडक्शन करेगी और कितना यूनिट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करे, जिससे कि दोनों कंट्रीज़ को गेन हो. तो जो गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कैलकुलेट किया जाता है दैट इज़ थ्रू द कॉस्ट रेशियो. और कॉस्ट रेशियो जो निकाला जाता है दोनों कंट्री का, वो बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा प्रोडक्शन था उससे निकाला जाता है. सो फर्स्ट, कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस फॉर टी इन इंडिया. इंडिया में राइस फॉर टी का जो कॉस्ट रेशियो है वो कितना है. इंडिया 10 यूनिट राइस प्रोड्यूस कर रही थी और 20 यूनिट टी प्रोड्यूस कर रही थी. दैट मीन्स कॉस्ट रेशियो विल बी 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ टी. Similarly, cost ratio in Iran, 20 यूनिट ऑफ राइस फॉर टी का निकाल रहे हैं हम. 20 यूनिट राइस प्रोड्यूस कर रही थी और 10 यूनिट टी प्रोड्यूस कर रही थी. तो 1 यूनिट ऑफ राइस दैट इज इक्वल टू 0.5 यूनिट ऑफ टी. तो 1 रेशियो 0.5 इज द कॉस्ट रेशियो ऑफ ईरान. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि राइस में ईरान का है और टी में इंडिया का है. बट गेन कितना होगा कौन सी कंट्री को, और कितना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे जिससे कि दोनों कंट्री को गेन हो. सो ये जो निकालेंगे हम, ये कॉस्ट रेशियो के थ्रू निकालेंगे कि गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. ईरान की जो कॉस्ट रेशियो है दैट इज 1 रेशियो 0.5. 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल टू 0.5 यूनिट ऑफ टी. So Iran will gain if it gets more than 0.5 यूनिट ऑफ टी, क्योंकि ईरान इंपोर्ट क्या कर रही है, टी, और एक्सपोर्ट कर रही है राइस को. सो ईरान विल गेन इफ इट गेट्स मोर देन 0.5 यूनिट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया बाय गिविंग और बाय एक्सपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ राइस. 1 यूनिट राइस के बदले उसे अगर 0.5 से ज़्यादा टी मिल रहा है, क्योंकि 0.5 तो वो अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर सकती है,
बट अगर उसे 0.5 यूनिट से ज़्यादा मिल रहा है इंडिया से, तब उसे गेन होगा, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल टू 0.5 यूनिट तो उसकी अपनी कंट्री में। अगर 0.5 से ज़्यादा मिलता है इंडिया से 1 यूनिट राइस देने के बदले, तब उसे गेन होगा। सिमिलरली इंडिया विल गेन इफ इट गेट्स 1 यूनिट ऑफ राइस, इंडिया राइस इंपोर्ट कर रही है 1 यूनिट ऑफ राइस बाय गिविंग लेस देन 2 यूनिट ऑफ टी। इंडिया टी एक्सपोर्ट कर रही है तो 1:2 है कॉस्ट रेशियो, तो इंडिया की अपनी कंट्री में तो वो 2 यूनिट टी के बराबर 1 यूनिट राइस है। उसे बेनिफिट तब होगा जब वो 1 यूनिट राइस के बदले उसे 2 यूनिट से कम टी एक्सपोर्ट करना पड़े, तब उसे बेनिफिट होगा। सो इंडिया विल गेन इफ इट गेट्स 1 यूनिट ऑफ राइस बाय गिविंग लेस देन 2 यूनिट ऑफ टी, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ टी के इक्वल तो वो खुद ही अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकती है। उससे कम में अगर सस्ते में मिल रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में बेनिफिट ले सकती है। सो गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द कॉस्ट रेशियो। अब इसी को हम डायग्रामेटिक देखते हैं। ओ वाई एक्सेस पे हमने लिया प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड ऑन ओ एक्स एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ टी। इंडिया की जो कॉस्ट रेशियो थी दैट इज 1:2, 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ टी। सो रेड जो ऑरेंज लाइन है दैट इज अ ट्रेड लाइन ऑफ इंडिया। In Iran, the cost ratio was 1:0.5, 1 unit of rice equal to 0.5 unit of tea. तो ये हमारे ग्रीन जो लाइन है दैट इज द कॉस्ट लाइन और ट्रेड लाइन ऑफ ईरान। अब हमने क्या देखा था कि 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले ईरान को अगर 0.5 से ज़्यादा मिलता है ठीक, तब उसे बेनिफिट होगा। ठीक है, मतलब 0.5 यहाँ है, 0.5 से ज़्यादा राइट साइड में। इंडिया को गेन तब होगा जब उसे 1 यूनिट राइस के बदले 2 यूनिट से कम टी देना पड़े। इस पॉइंट से लेफ्ट में 2 यूनिट से कम टी देगी वो, तो इंडिया किधर आई लेफ्ट में और ईरान कहाँ गया राइट में। तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द बोथ कंट्रीज। ये दोनों ही कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या गेन होगा आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या गेन होगा, ये शेडेड एरिया ये शो कर रहा है। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज mainly based on the specialization in production and division of labor. And Adam Smith says countries should specialize in that commodity which it can produce more cheaply than the other country, and it should export that commodity only and should import that commodity which is expensive in its country. So the absolute theory is based on the absolute difference in the कॉस्ट बिटवीन द कंट्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन बेस माना है एडम स्मिथ ने वो है हमारा कि एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द कॉस्ट। सो दिस इज अबाउट द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दैट इज गिवन बाय द रिकार्डो।